Okay. So let's discuss about a simple logic. I know we are discussing VB.NET. We are supposed to discuss VB.NET, but let's discuss something. So suppose I want to check these two circles are intersecting with each other or not. So what is the logic? Suppose you know VBA, you know somebody knows Lisp. I have to check whether they are uh, kind of touching each other or crossing each other or one is inside each other, whatever. So for example, this one, I have to consider whether they are not intersecting or intersecting. What is the logic? सर आपने एक बार वो सिखाया था ना बाउंड्री वाला, वो अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के बाउंड्री का सेंटर फाइंड कर ऐसा कर सकते हैं सर। Sorry. वो ऑब्जेक्ट बाउंड्री आपने ऑब्जेक्ट बाउंड नहीं, ऑब्जेक्ट बाउंड्री छोड़ दो, ऐसे नॉर्मल सब बाउंड्री फाउंड्री तब एपीआई, तुम ऑटोकैड एपीआई यूज करोगे तभी तुमको बाउंड्री मिलेगा, राइट? सर You will आवाज get boundary. You will get boundary only if you actually use some API of AutoCAD that will give you boundary, right? ओके So normal scenario, two circles. What will सर be the आवाज क्लियर नहीं है आपका। सर मैं बोलूं? yeah हेलो। yeah हाँ, tell वो me. दोनों का जो सर्कल है ना, उसका सेंटर लाइन लूंगा और उसके जो सेंटर लाइन पे जो भी दूसरा ऑब्जेक्ट इंटरसेक्ट आएगा ना, तो वो लिस्ट में मैं फाइंड कर लेता हूँ वैसे। Yeah, what? दोनों दोनों जो सर्कल है उसकी सेंटर लाइन से मैं फेंस सिलेक्शन करूंगा। अगर उसमें दोनों आता यानी दूसरा ओवरलैप होता है, एक की रेडियस में दूसरा ओवरलैप होता है, तो पता चल जाएगा कि वो So this is the distance between two center points, right? This is the distance. यस एक तरीका है, दूसरा और भी एक minute. Or then that is the radius of these two circles. यस This circle may be, one circle may be bigger, one circle may be little bigger or smaller. So their radius will be also different, right? यस Now if the sum of the radius, मतलब इस लेंथ और इस लेंथ का टोटल जो होगा, if it is less than this distance between these two center, they are not colliding because the distance, right? यस But agar if in some scenario the sum of the distances, sum of the radiuses is greater than the distance between their center, they are colliding, right? यस दिस इज फर्स्ट लॉजिक। This is the logic, simple logic. यस Okay. एवरी टाइम ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना? हाँ क्या? एवरी टाइम ये सक्सेसफुल नहीं होगा ना लॉजिक? क्यों? अभी जो बड़ा वाला सर्कल है उसके अंदर छोटा वाला रहेगा तो नहीं, पहली बात तो कि सपोज दे आर आउटसाइड, और मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ. फॉर एग्जांपल अभी, so I have written a program and I want to go to demonstrate that. The purpose is, suppose there are two wheels. Suppose there are two wheels and they are or two objects, right? And they are now going to roll in opposite direction and they are trying to collide. I have to stop when they collide, right? यस So it is initially it is not inside, it is just both of them are outside और एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है, and I have to just stop when they are actually colliding. Got it? अभी बताओ मनसुख, इसको तुम कैसे बनाओगे? So मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, let me show you. So there is an sub main. Inside that I have created an object of a class. The name of the class is application. I have created an object of that class is name app, and there is a method in that function called run. So the application is running. Okay. ओके Inside that run method, actually I am actually initializing these two objects, two circles, using their handle. We know handle. What is handle of a Yes. AutoCAD object, right? Yes. So we are getting two objects, and I am assigning some velocities to that because they are moving to each other, means they have some velocities, right? In physics we represent velocity using vectors. So I will come to that in detail in future, but I'm just trying to tell you that if I am trying to move it,
into opposite direction. One is moving to the x direction, so its velocity is positive 10, and one is moving in the opposite direction, that's why it is minus 10. Got it? Yes. And as they're moving along the x-axis only, then the x component of the vector is assigned. It is not moving along the y-axis, the y component is 0, right? Yes. It can be in 3D, so it will be vector 3D, and z will have some z component as well. Yeah. Got But it. right now we are focused on the simple x-axis, 1D motion. In Yes. kinematics or physics book, it is called 1D motion. Mm. Now I am going to check for 100 times I am running through a loop, and every time I'm moving them, this is moving in this direction and this is moving in this direction, so they are vectors according their vectors. So vectors we have already assigned here, so this is moving this side and this is moving this side, and then I'm trying to check they have collided or not. So it will return false if they have not collided, and if they have collided it will return true. If it is returned true, then I will exit that for loop. It means it will exit, come out of this loop, and our Yeah. program will stop, right? Yeah. Got it. Now it can be implemented in any language. It can Yeah. be Lisp, VBA, .NET, C++, anything, right? And in the check collision function, what I am doing, basically taking the radius of both of them. I'm taking the center of both of them. I'm finding the distance between center to center. That is the distance, right? And checking if the sum of the radius is greater than equal to the distance between the centers, it is collided, return true, otherwise false. So this is the logic. Whatever I just have shown you, I have written in a function that will return true or false. Either it is collided or not collided, right? Got it? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so that is the output of this program. Now let me run it. It is checking it. Okay, now this is collision 0. This is one of the example that I have developed. Now there are many other examples. I am going to show few of them only, Mhm. just to give you an idea that what is possible or what is not possible. Yeah. So if I open another one, for example, the objects are not circle, they can be rectangle, right? Yes. So if they are rectangle, that logic will not work center to center. Yeah. So in that case, what will be the logic? So in that case, there are something called the overall logic will remain same, but let's run it and see. They are moving in opposite direction, head-on collision is going to happen, and as it is just collided, it is just stopped, right? Now Mhm. if I check the logic, there is something called intersect with function. So one curve is intersecting with another curve. So in VBA we have a function, uh, and it is applicable for any curve. Basically it can be circle, it can be spline, polyline, anything. There is something called intersect with method, that one, that will take two object and it will return some array of points where it has been whatever something. So using that I can check whether they are colliding or not, and accordingly I can take decision to stop or not, right? Getting my point or not? Yeah. Getting, sir. बढ़िया बता दिया सर मुझे. Okay, just look, there are many things to come, but Yeah. still it is a regular rectangle. Yes. But it can be something irregular rectangle, right? Means it can be Yeah. irregular polygon. It can be irregular polygon like that. And in that case also it should run equally, right? Yeah. If I check, let's check. They are moving in opposite direction. And as soon as they touch, they just stop, right? Wow. Okay. But it is not physics. If they collide, they will bounce back, right? Mm. And now it is only on 2D. Can we implement this thing in 3D? And also, if they collide, they will bounce back. It is possible or not in AutoCAD? Yes. I think possible. If I am telling it is possible, right? Yes. Yes. So let's try that. There are some 3D objects, right? I'm not going to teach you, I'm not going to implement it in front of you because it is already implemented in some other batches or actually out of my interest, but I'm just going to give you the demo out of it. सर ये
ये बढ़िया So रहेगा। I इससे create, sorry, इससे तो इंस्पिरेशन मिलता है सर कि ये सब हो सकता है, यानी कई प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेरा ओवरलैपिंग का तो। चलो ये पहले देख लो। मैंने सेम या चीज के एक एप्लीकेशन सिमुलेशन बोल के एक एप्लीकेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और उसको बिल्ड सीन बोला। कोई भी सिमुलेशन बनाने के लिए सीन बनाना पड़ता है, उस सीन में ये सब ऑब्जेक्ट्स है वगैरह वगैरह है, उसको रन कर रहा हूँ, राइट। जब मैं रन कर रहा हूँ प्रोग्रामेटिकली, वो मुझे पूछ रहे स्ट्राइकर की तरह। स्ट्राइकर मींस काइंड ऑफ कैरम बोर्ड समझ लो। मैं किसी से उसको स्ट्राइक करना चाहता हूँ। सपोज मान ले तो ये ग्रीन वाला स्ट्राइक कर रहा हूँ, इस समय स्ट्राइक कर रहा हूँ इसको, इस डायरेक्शन में स्ट्राइक कर रहा हूँ। देखा? अभी दोबारा रन करता हूँ। अभी ये रेड वाले से इस ब्लू ब्लू वाले को स्ट्राइक करूंगा। मजा आया? एवरीथिंग इज बहुत रिटन इन मजा VBA। आया, मजा आया। क्या हरि प्रसाद? अभी यहाँ पर कुछ तो बोल रहे हैं फिजिक्स लॉज फेल्ड, Yes, क्योंकि sir. मैंने कुछ चेक। देखो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में जा रहा हूँ। ये रन के अंदर बेसिकली क्या कर रहा है, अभी कोड को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये रन के अंदर एक्चुअली बेसिकली ये जो स्ट्राइकर वगैरह ले रहा है, जो जो कर रहा है, बाकी जितने भी ब्लू ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रोग्रामेटिकली एक सीन है, सीन के अंदर एक एक कर ऑब्जेक्ट को ऐड कर रहे हैं। उसका हैंडल ले रहा है और उसका वेक्टर में कुछ तो वेलोसिटी सेट कर रहा है। एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट कर रहा आ रहा है। और मैंने जिसको स्ट्राइकर बोला, स्ट्राइकर का वेलोसिटी कैसे सेट कर रहे हैं, मैंने जो डायरेक्शन दे रहा हूँ, डायरेक्शन का जो लेंथ एंड उसका डायरेक्शन है एक्स वाई कंपोनेंट, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। मैंने शायद जल्दबाजी में कर दिया, बट वो हम फिक्स करेंगे क्या क्या, बट आई विल चेक दैट। तो ये पहले ये कर रहा है कि बिल्ड सीन कर रहा है। बाद में जब रन कर रहा है, रन के अंदर क्या कर रहा है, 50 फ्रेम को रन कर रहा है ओनली। हर फ्रेम में सीन जो है, सीन को अपडेट कर रहा है। सीन के अंदर क्या कर रहा है, उस सीन के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, एक्चुअली बॉडीज का एरे लिया मैंने। मतलब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं ना, आई डोंट नो हाउ मेनी बॉडीज आर देयर। तो मैं जितने बार बॉडी को ऐड कर रहा हूँ, डायनामिकली बॉडी को ऐड कर रहा है यूजिंग रिडीम प्रिजर्व कीवर्ड से। पता है ना, एरे में डायनामिक एरे बनाने के लिए प्रिजर्व कीवर्ड यूज होता है, रिडीम प्रिजर्व, राइट। उससे हम एक एक बॉडी को ऐड कर रहे हैं और जब अपडेट कर रहे हैं, एक एक बॉडी को अपडेट कर रहे हैं। अपडेट पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, अपडेट पे हम एक्चुअली फिलहाल तो मूव कर रहे हैं, ओनली मूव कर रहे हैं। और मूव कैसे कर रहा हूँ, ये उसका जो वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी वेक्टर से हम उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दैट इज द VBA API। अभी ये तो मूविंग का हो गया, बट एक्चुअल कोलिजन कैसे हो रहा है, तो ये प्रोसेस कोलिजन बोल के एक फंक्शन है। उसके अंदर जाके लूप लगा के हर एक ऑब्जेक्ट के साथ हर एक ऑब्जेक्ट को चेक कर रहा है कि कोलिजन हुआ क्या नहीं हुआ, राइट। अभी 3D में कोलिजन चेक करने के लिए एक मेथड है चेक इंटरफेरेंस बोल के। ये चेक इंटरफेरेंस कहां से आ रहा है, अगर हम ये डॉक्यूमेंट देखते हैं, जैसे कोई कर्व होगा तो कर्व में जैसे रहता है इंटरसेक्ट विथ मेथड रहता है, इंटरसेक्ट विथ रहता है। ये दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर कर्व्स एक्चुअली बेसिकली। अभी 3D के लिए क्या है, कोई भी 3D सॉलिड होगा तो उसमें एक चेक इंटरफेरेंस बोल के मेथड है। इसके थ्रू हम चेक कर सकते हैं दो सॉलिड एक दूसरे के अंदर घुसा क्या नहीं घुसा है, मतलब इंटरफेरेंस हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, राइट। तो एक्चुअली रेविट वगैरह नेविसवर्क्स सॉफ्टवेयर में बहुत ब्रांडिंग करता है कि ये सॉफ्टवेयर में चेक इंटरफेरेंस होता है, ये होता है वगैरह वगैरह, राइट। हमारा सॉफ्टवेयर है जिसमें चेक इंटरफेरेंस होता है, हाई फाई सॉफ्टवेयर है भाई। वो चेक इंटरफेरेंस तुम ऑटोकैड के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो यार, उसके लिए नेविसवर्क्स रेविट की जरूरत नहीं है। हो गया। उसी को यूज करके मैंने ये बनाया कि इंटरफेयर हो रहा है क्या नहीं, समझे, यहां तक क्लियर है। हेलो, एनीबॉडी, आर यू देयर ऑनलाइन? यस यस यस। सर। बट ये तो सिर्फ चेक हुआ, बट ये कॉलिजन जो हो रहा है एक्चुअली एक दूसरे को धक्का मार रहा है। इसका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कैसे हो रहा है। समथिंग कॉल्ड इलास्टिक कॉलिजन, पढ़ा है, याद है। इंजीनियरिंग इंटरेस्ट देता है तो बहुत पढ़े थे, रहा है लग रहा है, IIT कोचिंग वगैरह वगैरह कुछ तो किया रहेगा। याद आ रहा है कि कॉलिजन, ये भूल गया।
या सर हम एक दूसरे को धक्का तो मारते हैं बट पता नहीं नहीं सर, collision मैं तो होता कुछ है। नहीं पढ़ा, 10th नहीं 10th ही किया है मैंने तो। कौन? मनसुख? यस, 10th मैट्रिक किया है सर। अच्छा चलो तुमने 10th पढ़ा है बट कम से कम 9 में तो इतना पढ़ा था ना, न्यूटन का लॉ तो पढ़े थे। यस यस, इंग्लिश मीडियम में थे क्या गुजराती में थे? गुजराती गांव में पढ़ा था, गुजराती अच्छा मीडियम। चलो उसमें एक भरबेक बोल के एक चीज होता है, मुझे बंगाली में तो भरबेक बोलता था, गुजराती में क्या बोलते पता नहीं है। मास इनटू वेलोसिटी हम्म पढ़े थे क्या? यस यस यस। और काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर वगैरह कुछ पढ़े थे? ये मास इनटू वेलोसिटी वाला पता चला, यानी उसका वेट के साथ वेलोसिटी। काइनेटिक एनर्जी वगैरह मुझे पता नहीं है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूलाज वगैरह ये तो पढ़ा रहेगा ना। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसका बिना इसका मैकेनिकल इंजीनियरिंग या स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, ऐसे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में तो ज्यादा मैकेनिज्म होता नहीं है, सब स्टैटिक ही रहता है मोस्टली, क्योंकि स्ट्रक्चर मतलब वो गिरेगा नहीं, गिरेगा तो भूकंप ही आएगा तभी गिरेगा, और गिरेगा तो फिर उसका कैलकुलेशन करके फायदा नहीं, सभी मरेगा स्ट्रक्चर में। बट मैकेनिकल इंजीनियरिंग होगा तो हमारा डायनामिक्स काइनेटिक्स कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बेसिकली जब कोलिजन होता है तो इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होता है। तो कोलिजन के पहले का टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम एंड कोलिजन के बाद का मोमेंटम टोटल मोमेंट ऑफ द सिस्टम प्रिजर्व होता है, एंड सेम काइनेटिक एनर्जी सो वगैरह वगैरह होता है। तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये अच्छा वेबसाइट था, इसमें से फॉर्मूला वगैरह लेकर तो मैंने उसको यूज किया एक्चुअली। सो आई हैव इम्प्लीमेंटेड दैट इलास्टिक कोलिजन हियर। उसमें से मैंने कैलकुलेशन करके जो दो बॉडी है मेरा, वो दोनों बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा मैंने कैलकुलेट किया यूजिंग दैट फॉर्मूला फ्रॉम द फिजिक्स। ये उसका इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या फॉर्मूलाज होगा, उसके हिसाब से मैंने उसको वेलोसिटीज को चेंज कर दिया। तो फिर जैसे लग रहा है कि सच में धक्का लग रहा है। अभी जिसने भी बीटेक किया, तुम में से बीटेक किसने किया है मैकेनिकल में? एनीबॉडी? नहीं सर, इंस्ट्रूमेंटेशन में किया है सर, मैकेनिकल में तो नहीं। अच्छा हरि का क्या स्टेटस है, हरि का क्या है? डिप्लोमा। चलो डिप्लोमा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है डिप्लोमा, बट ये तो पढ़ा रहेगा ना, ये फिजिक्स में पढ़ा रहेगा। बट करेक्शन। अगर हम यस फिजिक्स में सर, पढ़ पढ़ा रहे है हैं पढ़ा तो है। बट सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होता ना, इसका अप्लाई भी तो करना पड़ेगा। ये देखो एप्लीकेशन है। अभी तुम बताओ किसी ने सोचा था कि ऑटोकैड में ये पॉसिबल है? नेवर। नहीं सर, ये तो गेम ही हो गया है, गेम बनाते ऐसा ही हो गया। गेम जैसे बन गया ना, मतलब क्या प्रोग्रामिंग आएगा तो तुम ऑटोकैड को भी साला गेम बना सकते हो। सो ये देख के प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट आ रहा है? यस सर। चलो ठीक है। देखो लोग बोलते हैं कि लोग यस क्या सर। बोलते हैं, VB.NET बहुत पुराना है, आजकल चलता नहीं है, आजकल साला पाइथन का जमाना है, आजकल .NET का जमाना है, ये हो फलाना है डिमकरा है, जावास्क्रिप्ट है क्या? बोलते हैं क्या नहीं बोलते? भाई पहले VBA को प्रॉपर्ली पाइथन यूटिलाइज तो बहुत करो चल यार। रहा है अभी। भाई अगर तुमको ये करना आता है तो पाइथन से भी इसको कर सकते हो, VB.NEट से भी कर सकते हो, कोई भी लैंग्वेज से कर सकते हो इसको। यस यस। ये खेल जो है ये लैंग्वेज का खेल नहीं है, ये है प्रोग्रामिंग लॉजिक का खेल, यस थोड़ा सा सर। मैथमेटिक्स का खेल कि कैसे तुम इस चीज को डेवलप करोगे, स्टेप बाय स्टेप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कैसे इंप्लीमेंट करोगे। एग्जैक्टली फिजिक्स कहाँ लिखना है, फिजिक्स का फॉर्मूलाज कहाँ लिखना है। अच्छा मैं तो एक चीज बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने कुछ कैलकुलेशन किया है, उसके हिसाब से थोड़ा जो मैंने बोला था ना फिजिक्स का लॉ होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये मैंने जो कैलकुलेशन किया उसके हिसाब से अगर सही नहीं आ रहा है तो वो रिटर्न फॉल्स करता है और मुझे प्रिंट करता है कि भाई कुछ गड़बड़ हुआ, फिजिक्स लॉज फेल्ड। तो अगर ये प्रिंट कर रहा है तो हम देखोगे, अगर हम ये रन कर रहा हूं, मैं अगर रन कर रहा हूं ना, एक मिनट, इसको मैं रन कर रहा हूं, इमीडिएट विंडो में जाता हूं, देखता हूं कि देखो यहां पर तो कुछ एरर आ रहा है, बोल रहा है कि फिजिक्स लॉज फेल्ड। इसको मैं रन कर रहा हूं, उसको क्लिक करके इसको धक्का मार रहा हूं तो बोल रहा है फिजिक्स लॉज फेल्ड, मतलब कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ है। फिर भी ये कैलकुलेशन में गड़बड़ है क्योंकि अभी गड़बड़ क्या है, मैंने इतना अच्छा प्रोग्रामिंग लिखा फिर भी गड़बड़ क्यों है, क्योंकि जो दो काइनेटिक एनर्जी का सेम होना चाहिए वो वेरी क्लोज है, बट कंप्यूटर में क्या होता है इतना डेसिमल प्लेस तक गया तो मतलब डेसिमल प्लेस में फेल हो रहा है। मैं ये थोड़ा डेसिमल प्लेस कम कर देता हूं तो शायद
फेल नहीं रहेगा, अभी चेक करता हूँ, एक मिनट। इसका एरर हैंडलिंग नहीं किया तो एरर आ जाएगा, इसका एरर हैंडलिंग नहीं किया, एरर हैंडलिंग कर तो और भी कोड बड़ा हो जाता। अच्छा, इसको मैं दोबारा रन करता हूँ। देखो अभी मैंने जस्ट प्रेसिशन को कम कर दिया तो एक्चुअली देयर इज नो फिजिक्स एरर। तो एक्चुअल एरर नहीं था, थोड़ा सा कंप्यूटर का प्रेसिशन में प्रॉब्लम था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था, अदरवाइज देयर इज नो एरर एक्चुअली। तो मैंने एक्चुअली फिजिक्स का जो लॉ है वो मेरा ये सिमुलेशन में वैलिडेट हो रहा है क्या नहीं वो भी देख रहा है। अभी बताता हूँ सिमुलेशन एंड एनिमेशन में क्या फर्क है। एनिमेशन डोंट डू फिजिक्स कैलकुलेशन, वो सिर्फ दिखाता है फ्रेम बाय फ्रेम, थोड़ा कुछ देखने में अच्छा लगता है तो कुछ दिखा देता है, ये इंटरेस्टिंग चीज एनिमेशन ग्राफिक्स तरीके का दिखा रहा है, गेम या एनिमेशन कार्टून या मूवी में। बट अगर ये हम सिमुलेशन बना रहे हैं जिसमें फिजिक्स कैलकुलेशन है तो ऊपर सिमुलेशन हो रहा है। एनीवे, तो दैट इज द थिंग दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड इन VBA। जिस VBA को लोग बोलते हैं कि कोई काम का चीज नहीं, बहुत पुराना चीज है भाई, अभी डॉटनेट पाइथन जावास्क्रिप्ट के जमाना है, मैंने ये बोल रहा भाई प्रोग्रामिंग तुमको आएगा, यू कैन राइट इन एनी लैंग्वेज, लैंग्वेज डज नॉट मैटर। अगर प्रोग्रामिंग नहीं आएगा तो तुम किसी भी लैंग्वेज में नहीं कर सकते। चलो अभी के लिए डेमो मैं यहाँ पर खत्म कर रहा हूँ और वीडियो रिकॉर्डिंग भी स्टॉप कर रहा हूँ, एंड विल बी स्टार्टिंग आवर VB.NET क्लास। ये रिकॉर्ड मुझे भी बंद करने दो।